इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी हुआ तो वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का पास होना और उसका जो 9 नवंबर को इनैक्ट होना वो था। हमारे पास अगर देश से हमारे ऑनरेबल मेंशन किया और स्पेशली पैरालीगल उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में जिक्र किया बिकॉज जुडिशरी, अब जुडिशरी का जो इनोवेटिवनेस है, जो जुडिशरी का प्रोएक्टिव एस्पेक्ट है, वो लीगल सर्विसेज एक्ट के तहत फ्री लीगल एड के माध्यम से लोगों के बीच में जाना, चाहे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी आदमी चाहे वो किसी गांव में दूर violated. Second thing, 2 topics that I'm gonna discuss with you: constraint and awareness. Many acts are there, like recently we about the juvenile justice, like still many people are unaware about that act, and rights are violated. In the same way, but still you are unaware. को ये एक्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में से लेके आज तक जो है हर साल 9 नवंबर का दिन जो है ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज नेशनल, मैं अपने पीएलबी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नालसा सॉन्ग जो है वो प्ले करें। शफीक साहब सब जज, जसप्रीत कौर मैम डिस्ट्रिक्ट मोबाइल मजिस्ट्रेट, वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पुंछ एडवोकेट अबरार साहब, कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। Very good morning to all of you. As we know, the purpose of our assembling there is to celebrate the National Legal Services Day. What is the importance of the National Legal Services Day? Why it is celebrated? Basically, when the Constitution was enacted, no provision was incorporated in the Constitution for the unprivileged persons, for the marginalized societies, how they will get justice from the courts. Ultimately, 42nd Amendment was incorporated in the Constitution, by virtue of which Article 39A was incorporated. What was the purpose of Article 39A? To ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of any economic or other disability. Keeping in consideration the directive principle of state policy, Article 39A, the Legal Services Authority Act 1987 was passed by the Parliament of India. Thereafter, the said act came into force in 1995 on 9th of November. That is why this day is celebrated all over India. Although there were provisions in the Constitution regarding equality, Article 14, Article 21A, that nobody should be deprived of his personal liberty except in accordance with the law, but there was no provision how the marginalized sections would get justice from the courts. The purpose of the Legal Services Authority Act was to provide free legal aid and advice, spread legal awareness, promote settlements of disputes through alternative dispute resolutions mechanism, various kinds of ADRs mechanisms like arbitration, conciliation, judicial settlement, settlement through lok adalats, mediations, legal services institution for providing free legal services. Now, paralegal volunteers, they have been appointed everywhere in districts. 14 paralegal volunteers. What was the purpose of appointing them? So that they can spread legal awareness. वही जहाँ गरीब आदमी आता है उनको गाइड करेंगे, वो उनकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं, जेलों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, उनका काम है इनको बताना। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हमारे देखो नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, विच इज बीइंग हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हु इज द पैटर्न चीफ। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो 1987 में जो इनेक्ट किया गया था, वो 9 नवंबर 1995 यानी 1995 9 नवंबर 1995 को जो है वो अमल में लाया गया था पूरे हिंदुस्तान में। तो उसी एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में जो है आज नेशनल लीगल सर्विसेज डे जो है वो मनाया गया। इसी तरीके से पुंछ कोर्ट कम्प्लेक्स में भी हमने ये दिन मनाया। इस एक्ट को मनाने का मकसद यही है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि
अगर कोई भी इंसान, कोई भी शख्स या कोई अगर बच्चा है, कोई औरत है, कोई भी शख्स ST SC से अगर बिलोंग करता है, या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर यानी नेचुरल कैलेमिटी से अगर कोई विक्टिम है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अगर कोई विक्टिम है, तो उसे मुफ्त कानूनी इमदाद जो है वो डालसा जो है उसे प्रोवाइड करता है। उसके लिए ऐसे अशखास को सिंपली हमारे दफ्तर में आना है, डालसा के ऑफिस में आना है और सिंपल एक एप्लीकेशन जो है वहाँ पे देनी है, और पूरा जो उसका खर्चा होगा वो जो है डालसा उठाएगा, उसे कोई भी पैसा जो है खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज कोर्ट कम्प्लेक्स में जो है ये नेशनल लीगल सर्विस डे जो है ये मनाया गया, ताकि लोगों में अवेयरनेस जो है पैदा की जाए। 9 नवंबर को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ की तरह पूरे हिंदुस्तान में, इवन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये दिन मनाया जाता है। आज इस दिन की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करने के लिए, इस दिन की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करने के लिए ऐसे फंक्शंस हर जगह किए जाते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 है वो आज ही के दिन इनैक्ट हुआ था, एनफोर्स हुआ था। आज ही के दिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कहूंगा कि लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 जो है, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन विच वी कैन सी इन द नेम ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट से हमारी मतलब कि वो सरकार, वो स्टेट जो लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करे। एक्सेस टू जस्टिस जो हमारे नालसा का जो मोटो है, हमारे नेशनल लेवल पे नालसा रहता है, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन जो हमारे प्रिंसिपल सेशंस जज यहाँ पे मौजूद हैं, श्री अश्विनी कुमार शर्मा साहब हैं, और हमारे लर्नड जो सेक्रेटरी डालसा श्री रफाकत हुसैन मीर साहब हैं। इन्हीं की सुपरविजन में हमारे यहाँ पे जितने भी फ्री लीगल एड के काम, चाहे वो लोक अदालत का काम है, चाहे प्रिजनर्स का लुक आफ्टर है, इवन टू द लास्ट कॉर्नर, टू द लास्ट स्टेप जो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के थ्रू डालसा जो है वो इंश्योर